evening, sir. Good evening, sir. Now I am able to unmute myself. Yeah. Okay. Here we go. Thanks. It is my pleasure to introduce today's session moderator, Ms. Pratibha Patel. Ms. Pratibha Patel is a dedicated and passionate educator with 27 years of teaching experience in various capacities. Her journey in the field of education has been enriching, including 9 years of experience as vice principal at 2 esteemed CBSE schools. Currently, she is working at Sanskriti, an English medium school in Ashok Nagar. With postgraduate degrees in English and Hindi literature, along with a master's in social work and AB Ed, she has consistently been driven to create engaging and impactful learning experiences for her students. Her passion for reading and lifelong learning has been a constant source of inspiration, and she is deeply committed to sharing this enthusiasm with others. As an educator, Pratibha excels at breaking down complex ideas, taking initiative in academic endeavors, and providing counseling to students to help them make informed decisions. While formal awards may not adorn her career, she finds her true reward in the smiles and achievements of her students. For Pratibha, teaching is more than a profession. It is a calling that brings her immense joy and fulfillment. She is excited to continue imparting her knowledge, experience, and passion, and remains dedicated to making a positive impact in the lives of her students. Hearty welcome, Ms. Pratibha. Please proceed. The stage is yours. Thank you so much. Thank you so much, sir. गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। एक बार पुनः आप सभी का ज्ञान से ओतप्रोत इस संध्या में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सब यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह विविध प्रतिभा संपन्न छात्रों को विविध साधनों और गतिविधियों का उपयोग करके प्रभावी अधिगम कराया जाए। आज की हमारी रिसोर्स पर्सन श्रीमती मनीषा बांबल हैं। शीघ्र ही हम उनके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम आइए हम सभी को एक सूत्र में पिरोकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति और जागृति लाने वाले बी.टेक और एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल सलाम सर का मिलकर अभिनंदन करें। सलाम सर, हृदय की गहराइयों से आपका आपके ही द्वारा प्रदत्त इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर सलाम 21वीं सदी के शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु स्वयं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ अन्य विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण भी प्रदान कराते हैं। शिक्षकों को सशक्त बनाने का यह काम वे एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एवं बी.टेक के मंच के माध्यम से करते हैं। उनमें एक विशिष्ट गुण है, वे सभी में छिपी विशिष्ट प्रतिभा को परख कर उसे आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करते हैं। मैं प्रतिभा पटेल आदरणीय सलाम सर की आभारी हूं, जिन्होंने आज मुझे यह स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच सर। औपचारिक रूप से किसी ऑनलाइन मंच पर मध्यस्थता करने का या मॉडरेटर के रूप में ये मेरा पहला अनुभव है और इसका संपूर्ण श्रेय आदरणीय अब्दुल सलाम सर को जाता है। हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत और वास्तव में एक आदर्श शिक्षाविद हैं, जो हमेशा सभी को अवसर एवं नवीन दिशा प्रदान करते रहते हैं। वी सल्यूट यू सर। मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आदरणीय सलाम सर को इस वर्चुअल मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे हम सभी को संबोधित करें। डॉक्टर अब्दुल सलाम सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा मैम and Adaraniya Manisha ma'am. Very happy to see Manisha Bambal as a resource person with us. So wish you all the very best, ma'am, and thank you for offering this topic. This topic is very, very important because we have multi-talented students in the classroom with multiple and differentiated abilities. So differentiated learning or teaching is the need of the hour. We have done a lot of sessions on differentiation, but in Hindi, it's going to be something new
wherein Manisha ma'am will take us through the activities, how differentiated activities can be conducted for the different level of learners and how their assessment can be made. So thank you so much, Manisha ma'am, for offering this session. And thank you, Pratibha ma'am, for joining us as moderator. Hearty welcome. And I thank Biju sir also, and welcome all the participants for joining this very important session in Hindi, differentiated learning in Hindi. So thank you so much for joining. Let's listen to the resource person today and take away a lot of things for implementation. Thank you so much. Over to Pratibha ma'am. Pratibha ma'am, over थैंक to you. यू थैंक यू सो मच सर। एंड बिफोर वी मूव अहेड, हम इससे पहले कि आज के सत्र में आगे बढ़ें, प्रतिभागियों के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश है जिसका उन्हें अवश्य ही पालन करना होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे अपना माइक्रोफोन म्यूट पर ही रखें। आप चैट बॉक्स का सतत प्रयोग कर सकते हैं, वहां आप आपके प्रश्न, आपके सुझाव, आपकी बात कह सकते हैं और समय आने पर आपकी समस्त शंकाओं का समाधान करने के साथ साथ आपके सुझाव भी मंच पर अवश्य पहुंचाए जाएंगे। सत्र के अंत में जब आपका नाम पुकारा जाए तो कृपया अपने आप को अनम्यूट कर आप अपनी बात कह सकते हैं अथवा प्रश्न पूछ सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी सीबीएसई संबद्ध विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 50 घंटे का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसी कड़ी में बीटेक एक अद्भुत काम कर रहा है जहां से आप इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने हेतु, इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने हेतु फीडबैक लिंक पर जाकर अपना फीडबैक देना एवं प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक कार्यवाही करना ना भूलें। अब आइए हम मुखातिब होते हैं बीटेक और एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन के सह संस्थापक श्री विजू पिल्लई सर से। विजू सर की शैक्षणिक योग्यताएं हम सभी के लिए प्रेरणास्पद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका अपना व्यापक अनुभव है और ये अनेक सीबीएसई संबद्ध विद्यालयों में प्राचार्य के रूप में कार्य कर चुके हैं और सदैव ही शिक्षक समुदाय का मार्गदर्शन करते आए हैं। मैं आदरणीय बीजू सर को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे भी हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय बीजू सर। थैंक यू प्रतिभा मैम, आप सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल सलाम सर, आज के इस सेशन के मुख्य अतिथि और रिसोर्स पर्सन मनीषा बंपत मैम, हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी और डीपीएस लावा नागपुर, और मॉडरेटर प्रतिभा मैम, मंच में आए सारे गुरुजनों, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने कहा, differentiated learning attitudes and how it can be implemented in the classroom. So my dear teachers, you actually know we usually used to categorize the children into gifted students, average and below average, and there will be many children who will be having multi-talented activities kept in their mind. So it is, as a dedicated teacher, it is our duty to sort it out, and equally as a teacher it is our duty to make the children understand the thing what we are teaching in such a way that all the category people, whether it is a gifted student, average student, or below average, as a dedicated teacher, it's our duty to make the child, make the classroom attentive and interesting. So it is up to the teacher how it can be molded. So in between, how we can crack some jokes and make the attention back into ourselves. So these all we can come across in today's session. Our Manisha ma'am is very confident and she's ready with all the things. And I would like to congratulate Pratibha ma'am, as she told this is the first time she is coming as a moderator, but hearty congrats ma'am, your confidence, everything is very nice, presentation is very nice. So thank you sir, thank you. Have a wonderful evening to everybody, and back to Pratibha ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच विजू सर।
तो आइए आज की इस ज्ञानमयी संध्या को आगे बढ़ाते हैं और रूबरू होते हैं हमारी आज की रिसोर्स पर्सन मैडम मनीषा बांबल से। इससे पहले कि हम उनके ज्ञान के सागर में गोते लगाएं, आइए उनके विषय में कुछ जान लेते हैं। मैडम मनीषा मध्य प्रदेश से हैं और इन्होंने एमए बीएड हिंदी साहित्य में किया हुआ है। ये एक शिक्षिका तथा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्य करते हुए पिछले 20 वर्ष से ज्ञान के मोती लुटा रही हैं। सीबीएसई कक्षा 10 का इवैल्यूएशन हेड इवैल्यूएटर का कार्य करते हुए इन्हें लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं और इन्हें बच्चों को पढ़ाना और उनकी समस्याओं को हल करना बहुत पसंद है। और जैसा कि हम आज के विषय से जान सकते हैं, जितने तरह की समस्याएं होंगी, मुझे लगता है आज हमारे बीच मनीषा मैम हम सभी को उन समस्याओं का हल देंगी। मैम को बहुत अच्छा लगता है कविताएं लिखना। अपने सहकर्मियों, अभिभावकों तथा बच्चों के साथ इनके संबंध अत्यधिक मधुर हैं और विद्यालय की ओर से इन्हें गुरु ऑफ काम एंड कंपैशनेट का अवार्ड दिया जा चुका है। साथ ही हिंदी माता परिवार की ओर से हिंदी रत्न अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ है। पारेख ज्वेलर्स नागपुर की ओर से द्रोणाचार्य अवार्ड तथा कक्षा 10वीं में विद्यार्थियों को 100 में से 100 अंक मिलने पर विद्यालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज मनीषा मैम जैसा रत्न, ज्ञान रत्न आज हम सभी को भी प्रकाशित और प्रभावित करेगा। विद्यालय की सभी शाखाओं में की पाठ योजना निर्माण समिति की ये सदस्य हैं और सभी शाखाओं, उनके विद्यालय की सभी शाखाओं में हिंदी अध्यापकों के क्लास ऑब्जर्वेशन की जिम्मेदारी भी इनके मजबूत कंधों पर है। वे सदैव नया सीखने का प्रयास करती रहती हैं और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य में हर प्रकार से अपना योगदान देती हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है मनीषा मैम। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद मैम, प्रतिभा मैम। आपने इतना सुंदर परिचय मेरा दिया है कि मैं मंत्रमुग्ध हो गई हूँ आपको सुन करके। शायद जितने जितने विशेषण आपने मेरे साथ लगाए हैं शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजू सर और सलाम सर, आपका काफी धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर रिसोर्स पर्सन के रूप में जो कुछ मैंने आज तक सीखा है इस 20 वर्षों में वो आपके साथ साझा कर सकूं और अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर कर सकूं। इसके लिए आपने जो अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं? यस मैम, प्लीज। यस मैम, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक। तो चलिए, आज की इस सभा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और आगे बढ़ते हैं हम आज की इस कार्यशाला की ओर। पर ये कार्यशाला मामूली कार्यशाला नहीं होगी, एक चर्चा सत्र में इसे बनाना चाहती हूँ। तो जैसा कि प्रतिभा जी ने बताया कि मुझे कविता लिखने का शौक है, तो एक कविता आज मैं शुरू करती हूँ। अपना कार्यशाला कविता से ही शुरू करती हूँ। आप सभी विद्वत जनों के समक्ष कुछ प्रस्तुत करूं, इतनी नहीं है मेरी काबिलियत। आप सब विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ पर, मेरी कोई काबिलियत नहीं कि आपके समक्ष कुछ कहूं, है ना। इसीलिए आज की यह कार्यशाला नहीं बल्कि होगा एक चर्चा सत्र। कुछ अपने अनुभव हम बताएंगे, कुछ आपके अनुभवों को सुनेंगे। कुछ अपने अनुभव बताएंगे, कुछ आपके अनुभवों को सुनेंगे। तभी हम सब हिंदी सेवी हिंदी का परचम ऊंचा लहरा पाएंगे। रह जाए अगर कोई कमी तो माफ मुझे कर दीजिएगा। पहले ही माफी मांग रही हूं मैं, ताकि कोई गलती हो तो आपकी शरण में मुझे ले लीजिएगा। रह जाए अगर कोई कमी तो माफ मुझे कर दीजिएगा। गुजारिश है आप सबसे सहभागिता निभाकर सत्र को सफल बनाइएगा। आप सभी से ही गुजारिश है कि ये एक तरफा कार्यशाला नहीं होनी चाहिए। सबका सहभाग जो है वो मैं चाहती हूँ कि बीच बीच में जो भी आपसे प्रश्न किए जाए या आप कुछ कहना चाहे तो चैट बॉक्स के माध्यम से
और मेरे द्वारा जो लिंक भेजी जाएगी उसके माध्यम से आप जुड़े तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि सेशन जो है वो सफल हो रहा है। चलिए आगे बहुत बढ़ते सुंदर कविता मैम, थैंक यू सो मच। हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। चलिए, तो हमारी कार्यशाला की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से हम करते हैं। आओ सुने कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसको बहुत ज्यादा शौक था कि वो पौधे पेड़ लगाए और बहुत अच्छे से उसकी रखवाली भी करता था। हमेशा अपने छोटा सा बगीचा था उसके पास। उस बगीचे में वो छोटे छोटे पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना। कुछ पौधे उसने गमले में लगाए थे, कुछ क्यारियां बनाई थी, कुछ पौधे बड़े हो चुके थे। तो इस प्रकार से वो बहुत सुंदर तरीके से पौधों की देखभाल करता था। अब ऐसा करते करते देखा देखा कि पौधे जो है बहुत अच्छे से बड़े हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, अच्छे पत्तियां फूल पौधे उसमें आ रहे हैं। उन्हें देख देख कर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ करता था। धीरे धीरे एक एक छोटा सा बीज भी अगर उसने बोया है तो वो उसको रोज देखा करता था कि धीरे 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 वो छोटा सा बीज एक पेड़ में वृक्ष में परिवर्तित हो रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। बहुत मन ही मन आनंदित होता था। पर एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई। बेचारा अपने खटिया से उठ ही नहीं पा रहा था, इतनी बुरी हालत में पड़ा हुआ था। पर उसे उस उन पेड़ पौधों की बहुत अधिक चिंता थी। तो ऐसी हालत में उसने अपने नौकर से कहा कि मेरे पेड़ पौधे सूखने नहीं चाहिए। उसको उसकी अच्छे से जैसी मैं देखभाल करता हूँ, तुम भी ऐसी ही देखभाल उन पेड़ पौधों की करो। नौकर गया, नौकर ने देखा कि भाई हाँ, पेड़ पौधे जो है कुछ गमलों में लगे हुए हैं, कुछ क्यारियों में है, कहीं बड़े पेड़ है, कहीं छोटे पौधे हैं, कहीं नाजुक है, कहीं मजबूत है। अब वो थोड़ा आलसी था। नौकर जो था वो आलसी था। उसने क्या किया कि जो गमले इधर उधर अलग अलग जगहों पर रखे हुए थे उन सबको एक जगह लाकर रख दिया, ताकि उसका जो श्रम है वो बच सके। एक ही साथ वो सबको एक साथ पानी दे सके, इसलिए उसने सारे पौधों को गमलों को एक जगह ला करके रख दिया। और उसको लगा कि सही प्रमाण में मैं सबको एक साथ पानी दे दूंगा तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा और पौधों की सुरक्षा भी हो जाएगी। अब क्या हुआ? कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद कुछ पौधों से पत्तियां झड़ने लगी, कुछ पौधे मुरझाने लगे, कुछ पौधे पीले पड़ने लगे, तो कुछ एकदम ही सूख गए। अब ये अवस्था आई, वो भी चिंतित होने लगा कि ये क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। कुछ समझ नहीं पाया वो। और आज यहीं पर लाकर मैं इस कहानी को छोड़ती हूँ और चैट बॉक्स के माध्यम से आप सभी से इसका उत्तर मैं चाहूंगी कि आप सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। चैट बॉक्स में उत्तर चाहूंगी मैं आप सभी के। क्या कारण है कि कुछ पौधे पीले पड़ने लगे, कुछ पौधे सूखने लगे, कुछ पत्ते झड़ने लगे? क्या कारण हो सकता है? आप सभी अपने अपने कारण उत्तर प्रश्न का उत्तर चैट बॉक्स में डाल चैट सकते बॉक्स हैं। के माध्यम से डाल सकते हैं। पानी की कमी के कारण, सारा मैम, जी, धन्यवाद। यस, चित्रा मैम ने कहा है कि सभी यूनिक थे, अलग थे। यस, इंडिविजुअल केयर। यस, चित्रा मैम ने अपने कहा है मालिक कि की अपने याद अपने, में। हाँ। ओ वाह। वो सनी, हाँ, बहुत ज्यादा धूप होगी, सनी एरिया होगा। यस जेली मैम। सरस्वती मैम भी कह रही है हाँ। वनीता मैम ने कहा है कि हाँ, सब पौधे अलग अलग हैं, अलग पौधों की अलग तरह से देखभाल की जरूरत होती है। बिल्कुल। नम्रता मैम ने ऐसे भी कहा है गायत्री कंपैशन। मंत्र कह रही हैं, ऐसा इसलिए हुआ कि जब जी। तक देखभाल केयरिंग हो रही थी तब हाँ तक हाँ, अब नहीं हो पा रही थी। अब नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल सही। अलग अलग पौधों को अलग अलग तरह की देखभाल की जरूरत होती है। यस देवानी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे प्रतिसाद मुझे मिल रहे हैं। कुछ पौधों को अधिक तो कुछ को कम पानी देना होता है। यस भवानी मैम, एकदम करेक्ट। तो सभी के उत्तरों के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी सभी का, कि सभी ने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और प्रतिसाद दिया। आप सभी के जवाब जो है
वो काफी हद तक सही है। और यही चीज मैं आज अपने प्रेजेंटेशन से जोड़ना चाहूंगी कि जिस प्रकार से पौधे अलग अलग थे, पौधों को पानी की अलग अलग जरूरत थी। किसी को अधिक धूप की आवश्यकता होती है तो कुछ पौधों को छांव की आवश्यकता होती है, कुछ नाजुक होते हैं तो कुछ मजबूत होते हैं। तो इसी प्रकार से हम एक शिक्षक के रूप में देखें तो हमारे बच्चे भी नाजुक छोटे छोटे कोमल पौधे ही हैं, और उन्हें भी अलग अलग तरीके से देखभाल की आवश्यकता होती है, जो कि हम कहीं अपने प्रोफेशन के कारण या अपने कार्य व्यस्तता के कारण इन चीजों को कभी पीछे छोड़ देते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि हर बच्चे की आवश्यकता जो होती है वो अलग होती है। तो आइए इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। Yes. Wait a minute. आई थिंक स्लाइड जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, फिर से शेयर। हाँ, प्रेजेंटेशन दिख रहा है सभी को? यस मैम, इट्स सॉरी, विजिबल। हाँ सॉरी, यस। या तो यस, तो विभेदित कक्षा यानी डिफरेंशिएटेड लर्निंग जो होती है वो किस प्रकार से होती है। हमारी कक्षा में विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, विविध प्रकार की उनकी क्षमताएं होती है। तो डिफरेंशिएटेड लर्निंग के माध्यम से हम आज यही जानेंगे कि किस प्रकार के बच्चे होते हैं, हमें किस प्रकार से उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार से उनकी जरूरतों को समझना चाहिए। तो सबसे पहले कक्षा में विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपसे एक लिंक शेयर करना चाहूंगी, और उस लिंक के माध्यम से आप प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो उस लिंक के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप उस लिंक पर जाएं। मैं चैट बॉक्स में पेस्ट करती हूँ लिंक, तो आप सभी उस लिंक पर अपने अपने उत्तरों को जरूर बताइए कि किस प्रकार से जो है वो कक्षा में विभेदीकरण किया जा सकता है। लिंक आ आगे वो गई ना लिंक चैट? बॉक्स में आ गई है। जी जी। तो चाहूंगी मैं कि यहाँ पर विभेदीकरण कक्षा में क्या है, आपके हिसाब से विभेदीकरण क्या हो सकता है। अपने उत्तरों को मिंटीमीटर लिंक पे आप जरूर पेस्ट कीजिए। आपके उत्तरों की प्रतीक्षा में है हम लोग। प्रतिभा मैम, लिंक ओपन हो रही है? हो रही है, ओके। यस मैम, ये ओपन हो जी रही है, वर्क कर जी रही है। जी, ओके, थैंक यू। यस, बिलो एवरेज, टॉपर, एवरेज, बिल्कुल सही। डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट लर्निंग लेवल होते हैं, बिल्कुल सही। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिभाएं होती है। कुछ छात्रों की जरूरत के अनुसार उनके
आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें ज्ञान देने की आवश्यकता होती है। समझने के तरीके अलग होते हैं, बिल्कुल सही। छात्रों की जरूरत अलग होती है, बिल्कुल। इंडिविजुअल केयर की आवश्यकता होती है। जैसे हमने कहानी में देखा कि प्रत्येक पौधे को जो है वो समान मात्रा में पानी की या धूप की आवश्यकता नहीं थी, वैसे ही हाँ, लो लेवल स्टूडेंट्स होते, बिल्कुल एक समान न होना उनकी जरूरत है। यस, कुछ जन्मजात जो होते हैं गुण होते हैं बच्चों में, जिसे हमें ही आ, क्या कहेंगे, उसको परख कर उसको आगे बढ़ाना होता है। एक शिक्षक की भूमिका ही वही होती है। विशिष्ट गुण होते हैं, बिल्कुल सही, एकदम सही। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से कक्षा में विभेदीकरण जो है, हमने देखा कि विभेदीकरण किस प्रकार से हो सकता है। जरूरतें अलग है। कोई किसी में जन्मजात बहुत अच्छे गुण होते हैं, तो कोई लो अचीवर होता है जिसको नहीं समझ में आता जल्दी, उसकी समझने की क्षमता है उसमें थोड़ा अंतर होता है कि वो बाकी बच्चों से समझने में थोड़ा देर लगाता है। तो सीखने की दुनिया, हर छात्र हर संभावना होनी चाहिए। अगर हम एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हमारे कंधों पर ये भार है कि हर छात्र के लिए हर संभावना को हमें सत्यता पर लेकर के आना है। तो आज हम कक्षा में विभेदीकरण के महत्व पर चर्चा करेंगे। ये आज का हमारा उद्देश्य है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ही यही है। हम सीखेंगे कि यह शिक्षण रणनीति हर छात्र को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में कैसे सक्षम बनाती है। हर छात्र, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इस प्रकार का प्रयास हम इस कार्यशाला के माध्यम से करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि विभेदित कक्षा जो होती है, तो हर छात्र हर अवसर की बात तो हम कर रहे हैं, पर आपको क्या लगता है कि हमारी कक्षाओं में कितने प्रकार के ऐसे अलग अलग छात्र होते हैं जो कि हमें रोजमर्रा के जो हम कक्षाओं में जाते हैं तो नए नए छात्र हमें दिखते हैं। तो क्या क्या प्रकार हो सकते हैं छात्रों के, जो हम बीएड ट्रेनिंग में भी पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार के छात्र होते हैं। एक दो मुझे रिस्पांस मिल जाए तो अच्छा रहेगा कि किस प्रकार के छात्र हैं हमारी कक्षाओं में। हम हमेशा देखते हैं कि ये इस प्रकार के शिक्षार्थी है हमारे कक्षा में, और हमें उन्हें इस प्रकार से हैंडल करना चाहिए। अबव एवरेज छात्र होते हैं, यस। और किस प्रकार के छात्र हो सकते हैं जो कि हमें परखना है, तो हम किस आधार पे, तो हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार के छात्र जो है हमारी कक्षा में होते हैं। और ये छात्र जो है वो हम देखेंगे कि अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग प्रकार के छात्र हमें देखने को मिलते हैं। जो हम देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ छात्र जो होते हैं वो बहुत अधिक सक्रिय होते हैं अपने हर कार्य में। देखा जाए तो वो छात्र हमेशा सक्रिय होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो निष्क्रिय से बैठे हुए हैं। उनको हमेशा देखा जाए तो हमेशा किसी न किसी एक्टिविटी में उलझे रहना उन्हें बहुत अधिक पसंद होता है ना। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि किस प्रकार के छात्र हमारी कक्षाओं में होते हैं। तो विविध अधिगम क्षमता वाले, विविध कौशल वाले छात्र होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दृश्य शैली वाले छात्र होते हैं, विजुअल लर्नर्स जिसको कहते हैं। जो चित्र दिखा दीजिए, उनको ग्राफ दिखा दीजिए या वीडियो अगर आप दिखा रहे किसी पाठ का, तो वो बड़े इंटरेस्ट से, बड़ी रुचि के साथ उसका उपयोग करके सीखना पसंद करते हैं। दूसरे जो होते हैं वो श्रवण शैली वाले छात्र होते हैं, जो ऑडिटोरी लर्नर जिसको कहा जाता है, जिनकी जो सुनकर ज्यादा सीखते हैं। चर्चा करना उन्हें पसंद होता है। रिकॉर्डिंग अगर दिखा लगा दो तो वो सुनना ज्यादा पसंद करते हैं और सुनकर सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पढ़ने लिखने की शैली वाले जो छात्र होते हैं, वो हमेशा आप देखोगे कुछ एक या दुक्का छात्र ऐसे होते ही है जो हमेशा बुक खोलकर बैठे रहते हैं। रीडिंग राइटिंग। तो ऐसे जो लिखकर और पढ़कर जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, हर समय शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे। हमेशा आप देखोगे कि आप पढ़ा रहे हैं फिर भी उनका लिखना शुरू होता है, वो अपने नोट्स तैयार करते हैं व्यवस्थित तरीके से। तो ऐसे भी छात्र होते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो गतिज शैली वाले यानी काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, जो एक जगह आपको कभी नहीं दिखेंगे, उनको एंगेज करना पड़ता है।
तो ये शारीरिक गतिविधि में ज्यादा रुचि रखते हैं। इनको प्रयोग करा दो, एक्सपेरिमेंट करा दो, मॉडल बनाने के लिए बता दो। तो ऐसी चीजों के माध्यम से ये बच्चे जो है वो सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद विभेदित कक्षा की अगर हम बात करें तो विभेदित कक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सभी के लिए सुरक्षित महसूस हो और सहायक वातावरण प्रोवाइड करे। अब बार बार विभेदित कक्षा की बात हो रही है, पर एक शिक्षक के तौर पे हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि विभेदित कक्षा भले ही हमारी है, पर उस पर्टिकुलर बच्चे को हमें टैग नहीं लगाना है कि आप लो अचीवर हो, आप मिडल अचीवर हो, आप हाई अचीवर हो। ये बच्चे तक नहीं जाना है, ये हमें परखना है ना। बच्चे पे वो स्टैंप नहीं लगा के रखना है कि हाँ ये लो अचीवर है, तुम्हारा लो अचीवर का ग्रुप है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उनमें सहायता का वातावरण, सहायक वातावरण निर्माण करके ही हमें उन पे काम करना है। उन्हें बार बार इस चीज का अनुभव नहीं कराना है कि आपको, आप पढ़ने में कमजोर हो या आप मीडियम हो या आप हायर हो इसलिए आप पे ज्यादा ध्यान, ये बिल्कुल भी उनके ध्यान में नहीं आना चाहिए। तो वातावरण कैसे होना चाहिए? हर छात्र, उसका स्वागत होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, हर छात्र को अवसर मिलना चाहिए। जनरली देखा है हमने, जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में कभी जब हम भी पढ़े हैं तो होता है कभी कभी कि हाँ बैक बेंचर्स, है ना, टैग लग जाता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर छात्र को, हर बच्चे को समान अवसर और समान सम्मान भी मिलना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैं भी इस कक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग हूं। वो सुरक्षित महसूस करे। छात्र कक्षा में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आप हर छात्र तक पहुंचने का प्रयास करें, हर छात्र की परेशानियों को समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ समावेशी, यानी विभिन्नताओं को अपनाया जाना जरूरी है। सभी को पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बच्चे समझ जाते, मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मुझे कोई ध्यान नहीं देता है, मुझे कोई प्रोत्साहित नहीं करता है। तो यही हमें देखना है कि उन्हें, उन उन स्तर के छात्रों को उसी स्तर के कार्य हम मुहैया कराएं, ताकि वे छात्र भी अपने आप को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कक्षा का अंग समझ सके और पूरी सहभागिता अपनी कक्षा में वो दे सके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, तो आपको ये चीज बतानी है कि अगर कक्षा में हम बात करते हैं कि विभेदीकरण तो किया जा रहा है, पर विभेदीकरण किस आधार पे किया जाना चाहिए? आधार क्या होना चाहिए उसका? जैसे मैंने अभी बोला कि हम बच्चों को टैग नहीं लगा सकते हैं कि हाँ तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, है ना, तुम्हें ये नहीं आता इसलिए तुम इस समूह में चले जाओ। तो क्या होना चाहिए? कुछ रिस्पांस मुझे मिल सकते हैं कि विभेदीकरण, अगर आपको बोला जाए कि आप कक्षा में विभेदीकरण कीजिए, तो आप किस आधार पर विभेदीकरण करेंगे, कैसे करेंगे? एक तो रिस्पांस अगर मुझे चैट बॉक्स में मिल जाए। मैं चाहूंगी आप जुड़ते रहे मुझसे, तो मुझे आनंद होगा कि हाँ सभी सतर्क है। क्योंकि जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि स्टूडेंट हमारी तरफ पूरी तरीके से ध्यान दे, है ना। नहीं तो फिर मजा नहीं आता है पढ़ाने में। यस, स्टूडेंट क्वालिटी, क्वालिटी के आधार पर किस प्रकार की क्वालिटी? सबसे बच्चों को सीखने की क्षमता के आधार पर डिफरेंट क्वालिटी, अंक के हिसाब से, और क्षमताओं के आधार पर। एकदम सही। यस रेनू मैम, बिल्कुल बिल्कुल। भाषा के आधार पर, बिहेवियर के आधार पर, काफी काफी चीजें हमारे पास है जिसके आधार पर हम बच्चों का विभेदीकरण कर सकते हैं, है ना। पर अगर हम बात करें विभेदीकरण की, तो विभेदीकरण जो है वो विविध प्रकार से हम कर सकते हैं। अंकों के आधार पर, ये तो पारंपरिक तरीके से हम करते ही आ रहे हैं, अंकों के आधार पर विभेदीकरण। पर आज माहौल ऐसा नहीं है, तो
विभेदीकरण के लिए सबसे पहले हमें कक्षा में देखना है निम्न स्तर के बच्चे, मध्यम स्तर के बच्चे और उच्च स्तर के बच्चे। हम कक्षा में जैसे ही जाते हैं हमें पता चल जाता है बच्चा कौन से स्तर पर बैठता है, किस स्तर का कार्य वो कर पाता है। तो इस प्रकार से उन बच्चों को हमें पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना है। अब अगर विभेदीकरण कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा विभेदीकरण होता है उद्देश्य के अनुसार विभेदीकरण, डिफरेंशिएटेड बाय ऑब्जेक्टिव। जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं हम ऑब्जेक्टिव जरूर लिखते हैं, लेसन प्लान में क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब इसका क्या होगा, निम्न स्तर के बच्चे हैं तो निम्न स्तर के बच्चों से हम क्या अपेक्षाएं करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या होगा कि इस स्तर में केवल बेसिक मूलभूत ज्ञान जो है वो बच्चा समझ सके, पाठ्य सामग्री को पहचानना, उसको दोहराना। कुछ मुख्य बातें होती है, पर्यायवाची है, विलोम है, तिथियां हैं, इनको याद रखना, प्रत्यक्ष उत्तर अभी हमने पढ़ाया, वन वन सेंटेंस वन लाइन आंसर वो बच्चा आराम से दे सके। ये यही उद्देश्य होगा। इसी उद्देश्य के आधार पर हम बच्चों को उद्देश्य के अनुसार विभेदीकरण की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा है मध्यम स्तर के बच्चों को कैसे क्या उद्देश्य होने चाहिए मध्यम स्तर के बच्चों के लिए। अब इन बच्चों का थोड़ा सा समझने का तरीका बोलिए थोड़ा ज्यादा होता है, ये अच्छे तरीके से, थोड़ा निम्न स्तर के बच्चों की अपेक्षा इनकी समझने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे में ये क्या करेंगे, इनमें विश्लेषणात्मक शक्ति जो होती है अधिक होती है। जानकारी को समझकर उनका कारण है, परिणाम है, उनके संबंधों को पहचानना है ना, प्राप्त जानकारी को एकत्रित कर उसको व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना है। ये सारी चीजें जो है वो मध्यम स्तर के विद्यार्थियों में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद उच्च स्तर के विद्यार्थी की अगर बात करें तो ये एक और लेवल आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ आ जाता है गहन चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग इन बच्चों में देखिए बहुत बढ़िया होती है। तो इस कौशल को हमें और ज्यादा बढ़ावा देना है और इन कौशलों को विकसित करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है, नवीन कार्य उन्हें देना है, रचनात्मक लेखन उन्हें अधिक देना है। तो इन बच्चों को कार्य जो है वो अलग प्रकार से हो जाएगा। जो निम्न स्तर का बच्चा मूलभूत है, दूसरा विश्लेषण कर रहा है, तो तीसरा स्तर है जो गहन सोच और एक कदम आगे बढ़ चुका है। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें विभेदीकरण का तो वो किया जा सकता है सफलता के मानदंड के अनुसार विभेदीकरण हम कर सकते हैं, डिफरेंशिएटेड बाय सक्सेस क्राइटेरिया। हम कोई भी एक्टिविटी लेते हैं है ना, तो कोई भी एक्टिविटी जब लेते हैं तब हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सक्सेस क्राइटेरिया तैयार करते हैं है ना। तो सक्सेस क्राइटेरिया हम कैसे तैयार करते हैं, कोई बताएगा मुझे सक्सेस क्राइटेरिया कैसे तैयार करते हैं। सक्सेस क्राइटेरिया किस किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं, अगर हम किसी भी प्रकार से बच्चों को जज करना चाहते हैं, उनको परखना चाहते हैं, उनके अंकों के आधार पर कर सकते हैं है ना। तो सक्सेस क्राइटेरिया जो है वो हमें बहुत अलग अलग तरीकों से अगर हम देखें तो सक्सेस क्राइटेरिया हम बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो किस प्रकार के सक्सेस क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम पाठ्य सामग्री को बच्चा पहचान पा रहा है तो निम्न स्तर के बच्चों के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसको उसके स्तर का जो है वो क्वेश्चन सा आप देखेंगे। आप बोर्ड एग्जाम में भी अगर आप देखेंगे तो मिक्स्ड पेपर होता है ना, सभी स्तर को ध्यान में रखते हुए जो है वो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए निम्न स्तर का बच्चा जो है वो एमसीक्यू, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही गलत करना, इसको आसानी से वो बच्चा जो है निम्न स्तर का वो समझ पाएगा। मुख्य शब्दावली वोकैबुलरी जो होती है वो बच्चे को थोड़ा सा रटवा सकते हैं, परिभाषाएं याद करा सकते हैं, सरल प्रश्नों का उत्तर देना और उसके साथ उदाहरण देकर किसी अवधारणा को स्पष्ट करना। यहां तक हम धीरे धीरे इस निम्न स्तर के बच्चे के लिए सफलता के मापदंड जो है वो हम तय कर सकते हैं। तो वही बात आती है मध्यम स्तर के बच्चों की। तो पाठ को समझकर उसका सारांश बच्चा लिख सकता है,
विश्लेषण कर सकता है, किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करके उसका समर्थन वो क्यों कर रहा है, विथ रीजन, है ना। तो ये कारण स्पष्ट बच्चा कर सकता है। और जो अवधारणा है वो सीखता है, अवधारणा कंसेप्ट जो है, किसी भी पाठ का, किसी भी विषयांश का कंसेप्ट जो है वो समझता है और वो लागू भी करता है, उसको उसको फॉलो भी करता है। कारण परिणाम ये सारी चीजें जो है मध्यम स्तर का बच्चा करेगा। तो उच्च स्तर के बच्चे के लिए क्या मापदंड हो सकते हैं? वो तर्क संगत और आलोचनात्मक विचार व्यक्त कर सकता है, लॉजिकली, उसका लॉजिक जो है, लॉजिक लगाकर वो प्रश्नों के उत्तर देगा। आलोचनात्मक, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो क्यों होना चाहिए, ये इस प्रकार के प्रश्नों पे ये ज्यादा भर देता है। विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करना कि यहाँ इसकी जगह में अगर वो होता तो क्या होता। जैसे हम 10th में देखते हैं कि हरिहर काका पाठ में अगर आप हरिहर काका की जगह होते तो क्या करते। तो इस प्रकार से जो है ऐसे प्रश्नों के लिए उच्च स्तर के बच्चे बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, नए समाधान निकाल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ भी शोध कार्य कर सकते हैं, उसके साथ साथ परियोजनाएं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सफलता के मापदंड है ये इन बच्चों के लिए कार्य करते हैं जो निम्न, उच्च और मध्यम स्तर के होते हैं। तीसरा, अगर हम देखें तो गतिविधि के अनुसार भी हम कक्षा को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। पर बार बार मैं यही कहूंगी कि अलग करते समय ध्यान दें कि बच्चे का स्तर जो है उस स्तर के आधार पर उसे बार बार ना बुलाया जाए, ये बहुत जरूरी है। बच्चे को अनजाने में किस प्रकार से हम स्तर में विभाजित करते हैं वो अनजाने रूप से होना चाहिए, बार बार उसे पॉइंट आउट नहीं करना है। तो निम्न स्तर का बच्चा अगर है तो वो चित्र पहचान कर वर्णन कर सकता है। ये छोटी सी एक्टिविटी हम दे सकते हैं उसको कि हाँ ये एक्टिविटी है, आपका समूह जो है ये चित्र पहचानेगा, जोड़ी बनाएगा, रिक्त स्थान भरेगा। तो दूसरे ग्रुप बना दिया हमने मध्यम स्तर के बच्चों का एक्टिविटी के लिए, उनको दे दिए कुछ पॉइंट्स दे दिए या कहानी की शुरुआत करके दे दी और उनको कहा जाएगा कि अपने हिसाब से आप कहानी तैयार कीजिए, कहानी को समाप्त कीजिए। विलोम और पर्यायवाची शब्द किसी पैराग्राफ दे दिया हमने मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए और को बोला कि हाँ इस पैराग्राफ से आप विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द ढूंढिए, निकालिए, श्रृंखला बनाइए। और साथ साथ उच्च स्तर के अगर बच्चे हैं तो उनको रचनात्मक लेखन, एक स्टेप और आगे का कार्य हम गतिविधि के रूप में दे सकते हैं, विज्ञापन लेखन दे सकते हैं, विचार विमर्श करा सकते हैं, डिबेट है या वाद विवाद प्रतियोगिता या भाषण प्रतियोगिता, इस प्रकार की गतिविधियां हम उच्च स्तर के बच्चों के साथ ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये गतिविधियां जो है कोई भी बच्चा अपने आप को पीछे नहीं समझेगा। निम्न स्तर का भी बच्चा समझेगा कि हाँ मैंने भी एक्टिविटी की अपने समूह के साथ, मध्यम वर्ग का बोलेगा मैंने भी की, उच्च स्तर का बोलेगा मैंने भी की। तो इस प्रकार से हर बच्चा अपनी अपनी गतिविधियों में अपने अपने तरीके से अपना योगदान जरूर देगा। मैम स्लाइड दिख रही है ना आपको? हाँ, यस मैम। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो उसके बाद आता है सहायता के अनुसार विभेदीकरण। मैं ये हमेशा अपनी कक्षा में जरूर लेती हूँ, डिफरेंशिएटेड बाय सपोर्ट। अब बच्चे को सपोर्ट देना है पर उसको ये नहीं बताना है तू कमजोर है इसलिए तुझे सपोर्ट दिया जा रहा है। हम क्या करेंगे, मिक्स एबिलिटी ग्रुप बनाते हैं, है ना। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप में क्या हो जाता है कि निम्न स्तर का भी बच्चा है, मध्यम स्तर का भी बच्चा है और उच्च स्तर का भी बच्चा है। अब उनमें क्षमता के अनुसार उनको क्या करेंगे, हम अलग अलग कार्य डिवाइड कर देंगे। अगर हम कोई एक्टिविटी दे रहे हैं तो सहपाठियों का एक समूह बना दिया जाएगा और समूह में उन्हें सहायता के लिए बोला जाएगा। तो तेज छात्रों को कमजोर छात्रों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उनकी रुचि, उनकी क्षमता और सीखने की जो शैली होती है उसके आधार पर समूह का मिश्रित कौशल और समान कौशल वाले समूह में हम निर्माण कर सकते हैं। अब ये सहपाठी समूह में हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो मिश्रित कौशल में कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया निम्न, मध्यम और उच्च स्तर के बच्चों को एक साथ बिठा दो, कोई एक्टिविटी दे दो उनको। अब एक्टिविटी में जो बच्चा मध्यम स्तर का है, हैंडराइटिंग अच्छी है, हाँ आप लिखेंगे। उच्च स्तर का बच्चा खोज के बताएगा, मटेरियल देगा उसको कि हाँ ये लिखना है।
निम्न स्तर का बच्चा जो है उसको बोलेंगे कि हाँ तुम रिसोर्स लेकर आओ, कोई पर्ची है, कुछ है, या टाइम टाइम मैनेजमेंट देखो, है ना, तुम टाइम टेकर हो, टाइम देखो, इतने टाइम में ये गतिविधि होनी चाहिए। यानी उत्सुकता से वो भी बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा। साथ ही साथ उच्च स्तर के बच्चे और मध्यम स्तर के बच्चे जो गतिविधि कर रहे हैं वो उसको साथ में सीखने को भी मिलेगी। अब समान कौशल भी कर सकते हैं हम सहपाठी के साथ, समान कौशल वाले। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको ड्राइंग पसंद है ना, अब हिंदी में हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं? हम बोलेंगे कि हाँ चित्रकथा तैयार कीजिए, है ना, समान कौशल वाले तो वो चित्रकथा तैयार, चित्र बनाकर एक कॉमिक स्ट्रिप जैसे होती है वह उस प्रकार से तैयार करेंगे। तो कुछ बच्चे होते हैं जो विज्ञापन बहुत अच्छा बना लेते हैं चित्रकला के माध्यम से। कुछ बच्चे हैं जो कविताएं बना सकते, कुछ शब्द दे दिए, रैंडमली कुछ भी शब्द दे दिए और बोला गया कि हाँ आपका लेखन कला अच्छी है, ये कौशल वाले बच्चे एक साथ आ जाएंगे और वो अपनी एक कविता तैयार कर लेंगे। तो सभी को, कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा, सबको अवसर भी मिलेगा और अवसर के साथ साथ उन्हें एक दूसरे का सहारा भी मिलेगा, सहायता भी मिलेगी, एक दूसरे से सीखने को भी मिलेगा उनको। उसके बाद व्यक्तिगत मार्गदर्शन, ये बहुत जरूरी होता है। शिक्षक उन छात्रों के साथ अधिक समय बिताए जिनको अतिरिक्त मदद है। जैसे सुधारात्मक कक्षाएं आजकल हर स्कूल में होता है, रेमेडिएशन, है ना, रेमेडियल क्लासेस हम करते हैं। तो जहां तक संभव हो ऐसे बच्चों को अपनी तरफ से उचित मार्गदर्शन करे, व्यक्तिगत सहायता उन्हें प्रदान करे, हैंड होल्डिंग करे बच्चे का। तो शायद ये निम्न स्तर का बच्चा अगली कक्षा में मध्यम स्तर पे जाएगा और हो सकता है भविष्य में उच्च स्तर पर भी आपकी सहायता से पहुंच सकता है। उसके बाद आता है संसाधन के अनुसार विभेदीकरण। संसाधन यानी रिसोर्स, है ना। तो कक्षा जो है, कक्षा में तो हम नॉर्मल रिसोर्स होते हैं हमारे पास, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड होता है, स्मार्ट बोर्ड होता है, और क्या क्या रिसोर्स है जो हम प्रयोग कर सकते हैं। चैट बॉक्स में जुड़ेंगे आप लोग तो ठीक रहेगा कि कौन से रिसोर्स है जो हम कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। पीपीटी यूज कर सकते हैं, और कौन से रिसोर्स है? स्मार्ट बोर्ड होता ही है, यस, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से वीडियो दिखाकर, बिल्कुल। जैसे हमने पहले देखा कि हमारे पास अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं जो केवल देखकर समझते हैं, विजुअल लर्नर होते हैं, है ना। तो फ्लैश कार्ड एक फ्लैश अच्छा कार्ड, बिल्कुल फ्लैश कार्ड है, ड्रामा है, बहुत बढ़िया। ड्रामा, हाँ बहुत सुंदर। अभ्यास पत्रकों के भिन्न माध्यम, अभ्यास पत्रों के माध्यम से माइंड मैप, बहुत बढ़िया बनता मैम। रोल प्ले, रोल प्ले, बिल्कुल सही बीजू सर। पपेट्स एक फ्लैश अच्छा कार्ड, रिस्पॉन्स आया यस, है। पपेट, हाँ जी मैम, जी मैम। पाठ के अनुसार पाठ्य सामग्री, एक्टिविटी, रोल प्ले, क्विज, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो इस प्रकार से हम संसाधन, रिसोर्स बहुत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जो हम करते भी है अपनी कक्षाओं में। तो इन रिसोर्स का प्रयोग जो है वो हम अलग अलग स्तरों के बच्चों के लिए उनको परख कर अगर करते हैं और सही प्रयोग उसका करते हैं तो शायद बच्चों में जो है वो प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाएगा, उनकी प्रगति का स्तर जो है वो बढ़ते जाएगा, है ना। तो संसाधन के अनुसार विभेदीकरण करते हैं तो क्षमताओं, उनकी जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार उनको उपलब्ध करा दे। विजुअल लर्नर है तो उसको वीडियो के माध्यम से, यानी एक पाठ को हम प्रत्येक तरीके से कक्षा में पढ़ा सकते हैं, है ना। जो बच्चा रीडिंग करना चाहता है तो रीडिंग के माध्यम से उसी पाठ का वीडियो दिखा करके, तो अलग अलग प्रकार से हम करते भी है इन चीजों को। बस हमें थोड़ी सावधानी ये बरतनी है कि हर बच्चे तक वो जो कुछ मटेरियल है हमारा वो पहुंच सके। अब ये आवश्यक क्यों है संसाधन के अनुसार विभेदीकरण करना? बोल तो रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि बच्चों का स्तर अलग होता है। एक ही प्रकार के संसाधन सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरे नहीं करते। कहानी पे हम फिर से जा सकते हैं कि एक ही प्रकार का वातावरण, एक ही प्रकार के, एक ही प्रमाण में पानी सभी पौधों के लिए सूटेबल नहीं था। इसीलिए प्रत्येक बच्चों को अलग अलग संसाधन की जरूरत होती है। यह छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने और उनकी रुचि बनाए रखने में मदद जरूर करता है। बच्चा पिछड़ता नहीं है, जाओ निरस हो जाएगा बच्चा कि अगर हम उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बच्चा
धीरे 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 उसका जो उसकी रुचि जो है ना वो कम होते जाएगी, कि नहीं मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा है। तो उसकी रुचि बनाए रखने के लिए, उसको आत्मविश्वास दिलाने के लिए जरूरी है कि उसकी योग्यता के अनुसार हम उसे संसाधन, रिसोर्स प्रोवाइड करें। उसके बाद आता है प्रश्न पूछने के तरीके से विभेदीकरण, डिफरेंशिएटेड बाय क्वेश्चनिंग। हम क्या करते हैं कक्षाओं में, आ, हम उसको लॉली लोटो नाम दिया है हमने। तो हम क्या करते हैं, आइसक्रीम स्टिक होती है, प्रत्येक बच्चे के नाम उस पर लिखे हुए हैं, और एक बॉक्स में हम डाल देते हैं उसको। और फिर जिस बच्चे का नाम निकलता है उससे प्रश्न किया जाता है रैंडमली। यानी ऐसा ना हो कि भेदभाव हो रहा है, उसी बच्चे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्रश्न पूछने में विभेदीकरण लॉली लोटो के माध्यम से, या एक और गतिविधि है जिसको हॉट पोटैटो हम कहते हैं। एक बॉल ले लेते हैं, और बॉल जो है हम किसी भी बच्चे की तरफ अचानक फेंकते हैं, जिसके हाथ में वो बॉल आ गया वो प्रश्न का उत्तर देगा। तो इस प्रकार से अब हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना है कि हम जरूरी नहीं कि प्रश्न पहले जहन में रखें और फिर बच्चे का नाम निकालें। जिस बच्चे का नाम निकला है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रश्न पूछें, है ना। तो अगर आसान स्तर यानी निम्न स्तर के बच्चे का नाम अगर निकला है, तो हम उसको उसी स्तर का प्रश्न पूछें, ताकि वो उत्तर भी दे सके और अपने आप को सम्मानित, गर्वित भी महसूस कर सके कि हाँ मुझे उत्तर आया, मैंने उत्तर दिया। और ऐसा नहीं कि मुझे पहले से पता था, अचानक मेरा नाम निकला, है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो पाठ में वर्णित मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, सिंपल प्रश्न है एकदम, बच्चा आसानी से उत्तर दे देगा। पानी बचाओ विषय पर 2 वाक्य लिख लीजिए, लिख लेगा बच्चा कैसे बचाना है पानी। मित्रता का अर्थ क्या होता है हर बच्चा जानता है, अपने शब्दों में क्यों ना हो वो उत्तर जरूर देगा। और अपने आप को एक आत्मविश्वास उसके अंदर आ जाएगा कि हाँ मैंने प्रश्न का उत्तर दिया। मध्यम स्तर का बच्चा, वही नाम निकलता है मध्यम स्तर के बच्चे का, तो उसमें कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किस प्रकार किया है, थोड़ा एक स्टेप आगे, है ना, वो कविता के अंदर जाएगा, पता करेगा। स्वच्छ भारत अभियान के महत्व पर अनुच्छेद लिखिए, कहानी के अंत को अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। और अगर वही आ जाता है बच्चा उच्च स्तर का, तो कठिन स्तर के प्रश्न उसको हम दे सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं को किस प्रकार पाठ में प्रस्तुत किया गया है, प्रकृति और मानव के संबंधों पर निबंध लिखे। तो इस प्रकार से स्तरानुसार जो है हम प्रश्न कक्षा में भी पूछ सकते हैं, और जब हम वर्कशीट बनाते हैं या फिर हम जब प्रश्न पत्र बनाते हैं, तो कोशिश यही रहे कि हर स्तर के प्रश्न उस प्रश्न पत्र में हम सम्मिलित करें, ताकि हर बच्चा उसको हल कर सके। बाद में आता है समय के अनुसार विभेदीकरण, डिफरेंशिएटेड बाय टाइम। कैसे, आप बोलोगे टाइम तो उतना ही होता है हमारे पास, है ना, कैसे हम उसी समय में सारे बच्चों के लिए हम प्रोवाइड करें, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। अगर हमने बोला है बच्चों को कि हाँ नोटबुक सबमिशन, कोई बच्चा धीरे लिखता है तो उसको थोड़ा सा एक एक दिन और हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। अतिरिक्त सहायता हम उसको दे सकते हैं कि भाई अगर कोई पीरियड में किसी की प्रॉक्सी लगी हुई है, तो बैठ करके एक एक उसको सहयोगी प्रदान करे कि भाई आप बताते चलिए, वो लिखते जाएगा, आप उसको मदद कीजिए। समय आधारित गतिविधियां जैसे हम देते हैं, तो गतिविधियों में जो है ओपन एंडेड टास्क दे दे कि हाँ ठीक है ये आप कर सकते हैं, थोड़ा सा समय और ले सकते हैं। विभिन्न गति पर समूह बनाना, जो फास्ट कर लेता है उनका समूह अलग, है ना। तो इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट उनको सिखा सकते हैं। फ्लिप क्लासरूम कर सकते हैं, समय के अनुसार विभेदीकरण में फ्लिप क्लासरूम हम ले सकते हैं, जिसमें कि फ्लिप क्लासरूम में जब से कोरोना आया है तब से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, और आज भी जो है हम उससे अलग नहीं हुए हैं, अभी भी हमारा चल ही रहा है। तो गूगल क्लासरूम आज भी हम बनाते हैं, तो उसमें हम पहले ही वीडियो भेज दिए, फ्लिप क्लासरूम में पहले ही कुछ मटेरियल प्रोवाइड करें, बच्चों को बोला जाए कि ये पढ़ के आइए, ये देख कर आइए, कल हम इस पे चर्चा करेंगे। तो ये समय जो है वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि विभेदीकरण को रोचक कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर हम विभेदीकरण की बात करते हैं, तो इसको रोचक बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आपसे जानना चाहूंगी मैं। तो
चैट बॉक्स में मैं पैडलेट लिंक पेस्ट कर रही हूँ। वेट अ मिनट। और पैडलेट पे आपको सभी को अपने अपने उत्तर जो है वो देने हैं कि हम विभेदीकरण को रोचक किस प्रकार से बना सकते हैं। विभेदीकरण करना, बच्चों को अलग अलग स्तरों में बांटना कोई आसान काम नहीं है। देखा जाए तो चैलेंजिंग है, हर समय इसको नहीं कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पैडलेट में आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से विभेदीकरण को बहुत अधिक रोचक, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैम लिंक मिल गई है चैट बॉक्स में? यस मैम, लिंक चैट हाँ बॉक्स में है और काम कर रही है। आप जी, सभी अपने अपने सभी से इनपुट्स अनुरोध है, बिल्कुल जो भी विचार है आपके, आप इस पे पोस्ट कर सकते हैं कि विभेदीकरण को किस किस प्रकार से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये चर्चा सत्र है ना। कुछ मैं अपने अनुभव बताऊंगी तो आपसे भी आपके अनुभव जानना चाहूंगी, आपसे भी सीखना चाहूंगी कि हम किस प्रकार से और अधिक विभेदीकरण को रोचक बना सकते हैं। ऑडियो विजुअल कंटेंट, यस। और क्या कर सकते हैं विभेदीकरण के लिए? इनाम देकर, बिल्कुल। बच्चों को अगर हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो इनाम, अब इनाम जो है वो हम किस किस प्रकार से इनाम दे सकते हैं बच्चों को? छोटी छोटी चीजें, स्टार दे देते हैं हम, स्माइली दे देते हैं, है ना, अच्छे काम के लिए। ये भी काफी होता है बच्चों के लिए कि हाँ, हम कुछ ना कुछ मिल रहा है तो मुझे जल्दी कार्य करना चाहिए, है ना। संसाधन के आधार पर विभेदीकरण करके हम उसको रोचक बना सकते हैं, बिल्कुल उनके रुचि के अनुसार। किसी को चार्ट बनाना अच्छा लगता है तो किसी को लिखना अच्छा लगता है, तो किसी को पीपीटी बनाना अच्छा लगता है ना। आजकल बच्चे टेक सेवी हो गए हैं तो प्रेजेंटेशन तैयार करके लाते हैं, बिल्कुल संसाधन के आधार पर। यस, प्रशंसा करके उनकी, बिल्कुल एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होता है। एप्रिसिएशन ऐसा वर्ड है जो छोटे बच्चे से लेकर हम बड़े भी हो गए, बुजुर्ग भी हो जाएंगे, फिर भी एप्रिसिएशन हर किसी को अच्छा लगता है। तो बच्चे जरूर इसको देखना चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटी चीजों पे, स्मॉल एफर्ट्स पे, बिल्कुल सही कि छोटे छोटे एफर्ट्स बच्चे जो लेते हैं उनको हमें सराहना उनकी जरूर करनी चाहिए कि हाँ बेटा ये बहुत अच्छा किया है तुमने। तो इस आधार पर हम किसी भी विभेदीकरण को रोचक बना सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी कि विभेदीकरण को रोचक बनाना कैसे। खेल, छोटे छोटे खेल, सीखने को मजेदार बनाने के लिए छोटे छोटे खेलों का प्रयोग करें। कैसे? अंताक्षरी, है ना, मुहावरों की अंताक्षरी हो गई, है ना। उसके बाद किसी सर्वनाम की ले लीजिए या संज्ञा की अंताक्षरी ले लीजिए। छोटे छोटे खेल कक्षा में आप करवा सकते हैं। उसके बाद समूह में परियोजनाएं दे सकते हैं छात्रों को काम कराकर साथ में। उसके बाद वास्तविक जीवन के उदाहरण बहुत ज्यादा बच्चों को पसंद आते हैं। आप देखिए, अगर आप पढ़ाते पढ़ाते खुद के अनुभव बताएंगे ना कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं कि हाँ मैडम के साथ भी ऐसा हुआ था, मैडम भी कभी बचपन में ऐसा करती थी, है ना। तो ये चीजें जो है वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं बच्चों को। तो वास्तविक जीवन के उदाहरण अगर हम उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो अवधारणा समझना, कंसेप्ट समझना उनके लिए आसान हो जाता है ना। तो किसी भी पार्ट में हम कोई भी चीज को हम अपने जीवन से कनेक्ट करें या हमने कोई देखी हुई घटना से कनेक्ट करें तो बच्चा उसको जल्दी जल्दी समझने में सक्षम हो पाता है। अब जैसे हम कुछ खेल करा रहे हैं तो निम्न स्तर के बच्चों के लिए चित्र के आधार पर कोई खेल, जैसे पजल है, पजल जोड़ना बता सकते हैं। शब्द निर्माण पहेलियां दे सकते हैं उनको। तो वही मध्यम स्तर के बच्चे हैं कि उनको कोई टॉपिक दे दिया, आप संवाद लेखन करिए, है ना। मुहावरों से कोई कविता बना लीजिए, है ना। मुहावरों के आधार पर ही संवाद कीजिए, हर संवाद में एक मुहावरा आना चाहिए।
है ना, शब्द श्रृंखला तैयार कीजिए, चेन तैयार कीजिए। कोई वाक्य है उसको काल में या फिर उसकी क्रिया बदलकर या उसको अलग प्रकार से सरल से युक्त मिश्र में पुनर्निर्माण कीजिए। ये गतिविधियां हम दे सकते हैं। तो वहीं उच्च स्तर के बच्चों के लिए तर्क वितर्क, मैंने बार बार बोला, उच्च स्तर के बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा शार्प होते हैं। तो गहन सोच वाले, लॉजिकल क्वेश्चन, तर्क वितर्क वाले प्रश्न उन्हें देने चाहिए। कहानी का विस्तार अपने हिसाब से कीजिए। अगर ऐसी आ, कुछ घटना ऐसे घटित हो गई तो आप उसका समाधान कैसे निकालेंगे, है ना। तो इस प्रकार से बस की यात्रा, मुझे याद है कक्षा 8वीं बस की यात्रा जो है, उसमें मैं गहन गहन सोच, हम हर प्रश्न, हर पाठ के बाद हम गहन सोच जरूर देते हैं हमारी कक्षाओं में। 2 प्रश्न हम जरूर देते हैं हर पाठ पे आधारित, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। तो मैंने प्रश्न बनाया था कि अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं और जंगल से जा रहे हैं और उस दौरान आपकी बस खराब हो जाती है और आप देखेंगे कि परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, ऐसी विकट परिस्थिति में आप कैसी सुरक्षा करेंगे, कैसी उस समस्या से निकलेंगे। अलग अलग प्रकार के उत्तर बच्चों के निकल कर आते हैं। तो ये समस्या समाधान जो हम नहीं सोच सकते ना, उससे परे बच्चे सोचते हैं कभी कभी। तो ये सारी चीजें भी बच्चों के तर्क वितर्क से निकल कर आती है। तो गहन सोच के लिए बच्चों को जरूर प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं का स्तर जो है वो बढ़ते जा रहा है। गहन सोच के प्रश्न, साथ ही साथ समस्या समाधान के प्रश्न जो है वो बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं। वास्तविक जीवन से जोड़ने के कथन कारण वाले प्रश्न, बहुत सारी चीजें जो है वो अभी बढ़ते जा रही है। तो हमें छोटे स्तर से ही बच्चों को इन सब में माहिर कर देना चाहिए कि हाँ, किसी भी प्रकार का प्रश्न आए बच्चा उसको कर सके। अब आप लोगों का एक त्वरित मूल्यांकन हम कर लेते हैं। तो फटाफट मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में उत्तर इन प्रश्नों के आप दे सकते हैं कि आज हमने विभेदीकरण के कितने प्रकार देखे हैं। दीपाली जी ने कहा 3, तारावंती जी ने कहा 7, दिव्या जी ने 3, 3, 7, 4, 6, कविता जी 3 कह रही हैं। बढ़िया बढ़िया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं कि विभेदीकरण किस आधार पे होता है। ये आई थिंक हो चुका है, बार बार सब बता चुके हैं कि विभेदीकरण के आधार क्या हो सकते हैं, कौन कौन से संसाधन ऐसे हैं जिनके आधार पर हम विभेदीकरण कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे संसाधन सबने बताए कि हम पीपीटी के माध्यम से कर सकते हैं। और विभेदीकरण में किस प्रकार की सहायता जो है वो हम बच्चों को दे सकते हैं, इसका उत्तर चाहूंगी मैं कि किस प्रकार विभेदीकरण में हम बच्चों को सहायता कर सकते हैं। कौन से प्रकार है जो हर स्तर के बच्चों को हम सहायता दे सकते हैं और वो भी बिना उन्हें किसी प्रकार का टैग लगाए, है ना। तो कौन कौन सी सहायता जो है वो देखना चाहूंगी मैं कि आप किस प्रकार की सहायता, लिखित मौखिक टेस्ट लेकर उनको, हाँ बिल्कुल। अगर बच्चा, हम देखते हैं उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न करके सामूहिक गतिविधि, रोल प्ले, बिल्कुल। तो हम सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं कि उनकी क्षमताओं को हम जान सकते हैं, है ना। पहले क्षमताओं को जान ले और फिर उस बच्चे पे उस प्रकार से हम आ, सुधारात्मक कार्य कर सकते हैं, अलग कक्षाएं ले सकते हैं, उसी बात पे बल दे सकते हैं कि बच्चा क्योंकि ऐसा लिखता है, छोटी सी चीज समझ में आ गई, बार बार लिखवाए, डिक्टेशन ले बच्चों का, है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों को उसमें हमेशा सहायता का हाथ उनकी तरफ बढ़ाए रखें। अब बात आती है कि विभेदीकरण की चुनौतियां क्या हो सकती है, क्योंकि अभी आप लोग बहुत बहुत आराम से सुन रहे हैं चीजों को, पर मन में सवाल बहुत उठ रहे होंगे। बता तो रही है पर इतना आसान थोड़ी है कक्षा में करना, ऐसा करो वैसा करो, सुनने में अच्छा लगता है, करने में नहीं होता है, समय कहाँ होता है, काम बहुत होते हैं। मैं आपकी मनस्थिति को, आपकी भावनाओं को बहुत बेहतर तरीके से समझ रही हूँ। तो आप बताएंगे मुझे क्या क्या चुनौतियां आती हैं। अगर हम कहना, टाइम मैनेजमेंट, वनीत मैडम बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट आता है।
बिल्कुल बिल्कुल गार्गी मैम कि हाँ, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं एज अ टीचर, पर इतने सारी चीजों में हम उलझे रहते हैं कि टाइम सबसे महत्वपूर्ण, टाइम मैनेजमेंट, समय। सभी का यही उत्तर है कि सिलेबस कंप्लीशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रेखा जी, सिलेबस कंप्लीशन, कम समय। दिव्या जी, सेक्शन चैलेंज, सिलेबस, टाइम, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, बिल्कुल सही। रिवीजन भी लेना होता है हमें, है ना, पाठ्यक्रम पूरा करना होता है, बिल्कुल सही, एकदम एकदम। धैर्य, यस, धैर्य होना बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं रह पाता है कभी कभी हम। हाँ, होता है ऐसे कि हाँ क्या है ये, क्यों ऐसे हो रहा है, रिजल्ट चाहिए, प्रेशर होता है, मैनेजमेंट का प्रेशर होता है ना, प्रिंसिपल का प्रेशर होता है, रिजल्ट अच्छा दिखना चाहिए, सारी चीजें हैं। पर हम कहेंगे कि एक भविष्य निर्माता के रूप में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो इन चुनौतियां तो आनी ही आनी है, और हमें ही साथ मिलकर उन चुनौतियों के समाधान भी खोजने हैं कि किस प्रकार इन चुनौतियों को हम पार कर सकते हैं। हम, ठीक है, एक प्रोफेशन की तरह हम इसको ना लेकर के एक भवितव्य निर्माण करने वाले एक शिक्षक के रूप में अगर इसको लेते हैं तो शायद कुछ हद तक ये चुनौतियां हम मिलकर ही इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर चुनौतियां है सीमित समय, सबसे पहला जो होता है कि टाइम मैनेजमेंट, है ना, तो सीमित तैयारी का समय होता है हमारे पास। तो क्यों ना हम पूर्व योजना बनाएं। आप बोलोगे कि पूर्व योजना भी कभी कभी फ्रूटफुल नहीं होती है ना। पूर्व तैयारी, लेसन प्लान हम काफी बना लेते हैं पर कभी कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है ना। तो उसका समाधान हमें ही निकालना है कि पूर्व योजना ऐसी बनाए जो कि इम्प्लीमेंट हम कर सके उसको आसानी से, छोटे समूह में काम करें, है ना, बहुत बहुत बड़े समूह बना करके छोटी गतिविधियां दे, छोटे टास्क करवाए, तकनीक का उपयोग करें, स्मार्ट वर्क, है ना, समय नहीं है तो स्मार्ट वर्क। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्कशीट बनाने, डिफरेंशिएटेड वर्कशीट बनानी है, क्योंकि हम बोल रहे हैं निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर। बहुत सारे ऐसे है ऐप जिसमें क्या हो सकता है कि बहुत डिफरेंट वर्कशीट्स बन जाती है ना। चैट जीपीटी पे आप डाल दीजिए कि हाँ बनाना है, तो आराम से आपको डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो वर्कशीट बनाना भी बहुत आसान हो चुका है। उसके बाद कक्षा प्रबंधन, है ना, यह बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाँ कक्षा मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट नहीं होता है। अगर हम एक्टिविटी दे दे तो केओस हो जाता है। ये सबके साथ होता होगा, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ कि अगर हम बोल दे बच्चों को कि आज एक्टिविटी लेनी है, आपको इस समूह में जाना है, आपको इस समूह में, बस हो गया, फिर तो पूछिए मत क्या हंगामा हो जाएगा क्लास में। तो अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है, हमें ही निकालना है। स्पष्ट दिशा निर्देश दे देना है। मैं 3 तक काउंट करूंगी, आप अपने अपने समूह में डिवाइड हो जाएंगे। या एक काम करिए, कल गतिविधि लेनी है, आज ही उनको बोल दीजिए कि कल अपने ही समूह में मेरे पीरियड में आप दिखना चाहिए, अपने समूह में आपको बैठ जाना है, हम ये गतिविधि लेने वाले हैं, है ना। छोटे समूह में बांट दे। स्पष्ट निर्देश उनको बहुत जरूरी होता है कि हाँ इतने समय में ये हो जाना चाहिए। मैं आवाज नहीं करूंगी, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, बस मैं काउंट करूंगी, उतने समय में सेटल डाउन हो जाना है। इतने समय में आपको अपने रिसोर्स मेरे टेबल से उठा करके आपको अपने ही ग्रुप में रोल दे देना है। अलग अलग रोल आधारित गतिविधि दे दीजिए। एक टाइम टेकर हो जाएगा, एक रिसोर्स पर्सन हो जाएगा जो रिसोर्स कलेक्ट करेगा मैडम के पास से, दूसरा राइटिंग करेगा, तीसरा टाइम देखेगा, है ना। ऐसे 5 लोगों में, 6 लोगों में अलग अलग रोल जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान से करने की कोशिश जरूर करेगा। एक बार थोड़ा परेशानी होगी, पर बच्चा जब समझ जाएगा इस प्रोसेस को कि हाँ इस हमें गतिविधि इस प्रकार से करनी है, तो शायद ये थोड़ा चैलेंज जो है वो कम हो सकता है। मूल्यांकन की चुनौती हो जाती है कि हम निम्न स्तर को कैसे अलग से करें। बोर्ड का पेपर तो एक जैसा ही आता है सबके लिए, ये सबसे बड़ा सवाल आता है ना। तो बोर्ड का पेपर एक जैसा आता है, पर ये हमें नीचे के स्तर से, मैंने बोला है कि निम्न से मध्यम, मध्यम से उच्च में लाने की अगर हम
छोटी कक्षाओं से ही प्रयास करे तो शायद बोर्ड का पेपर भी वो थोड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएगा। तो चुनौतियां आती है तो हमें क्या करना है, बहुस्तरीय प्रश्न पत्र, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर स्तर के प्रश्न जो है वो बच्चों को एग्जाम में दे। प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन, इंटरनल जो असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते रहे। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो हम लेते ही रहते हैं कक्षाओं में, छोटे छोटे टेस्ट जो है वो लेते रहते हैं। तो शायद ये मूल्यांकन की चुनौती कुछ हद तक कम हो सकती है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि शिक्षक पर कार्यभार का बढ़ना, जैसे पहले मैंने बोला कि हर तरीके से ओवरलोडेड होता है ना। शिक्षक जो है प्लानिंग भी बनानी है, ये भी करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या करें, संसाधन ऐसे बनाएं जो बार बार उपयोग कर सके। व्याकरण के कुछ कार्ड बना लिए, फ्लैश कार्ड बना लिए, कुछ लेमिनेट करके रख दिया उसको, है ना, अच्छे तरीके से उसको संभाल के रख दिया कि एक ही ऐसे स्तर का बनाइए कि वो 6th में भी काम आए, वो 7th में भी काम आए, वो 8th में भी काम आए। हर वर्ष उस सामग्री को आप फिर से दोहरा सके, फिर से उपयोग कर सके। सहयोगी शिक्षण, अन्य शिक्षकों से संसाधन साझा करें। अब एक ही टीचर तो नहीं पढ़ाता है ना, तो अलग अलग टीचर हैं, आपस में क्यों ना काम डिवाइड कर ले कि इस एक्टिविटी को आप बना लीजिए, मैं आपकी एक्टिविटी यूज करूंगी, आपके संसाधन मैं यूज करूंगी, आपके संसाधन मेरे संसाधन आप ले लीजिए, है ना। तो कितने आसानी से संसाधन जुट सकते हैं, हर साल थोड़े थोड़े अगर हम बना के रखें और ऐसे बनाए कि वो सुरक्षित रह सके, है ना। छात्रों को आत्मनिर्देशित बनाना। अब हम अधिकतर बच्चों में ये डाल सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा खुद पढ़िए, खुद सीखिए, सेल्फ लर्निंग कीजिए। आदत थोड़ी थोड़ी हम आदत इसमें डाल सकते हैं, और जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसका बेहतर प्रयोग आप कर ही सकते हैं। तो संसाधन के माध्यम से आप कार्यभार को कम कर सकते हैं। उसके बाद विविध आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक चुनौती है। तो जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि लेवल के अनुसार गतिविधियां ले ले, है ना, विभिन्न शिक्षण गतिविधियों का उपयोग करे, भूमिका निर्माण करे बच्चों का, स्वतंत्र और समूह कार्य के लिए प्रेरित कर दे बच्चों को कि हाँ, तुम अगर नहीं चाहते हो ग्रुप में तो हाँ, तुम स्वतंत्र कार्य करो, तुम समूह में कार्य करो। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हमें लानी पड़ेगी। संसाधनों की कमी हो जाती है तो जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है स्कूल में, उसी को बेहतर बनाने का प्रयास करें। पुस्तकों से, ऑनलाइन पाठ्य सामग्रियां है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, पीयर लर्निंग करवाए बच्चों को। हम क्या करते हैं कि बच्चा अगर कोई नया आया है तो उसको एक बड़ी हम दे देते हैं, वो बड़ी जो है वो साल भर उसकी सहायता करता है, उसके साथ रहेगा, उसको स्कूल के नियम बताएगा। तो ये सारी चीजें हम करा सकते हैं। तो पीयर लर्निंग भी करा सकते हैं, एक दूसरे से सीखेंगे बच्चे, वो अवसर उन्हें प्रदान किया जा सकता है। डिजिटल टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है, ऑनलाइन वर्कशीट बहुत सारी आती हैं, है ना। तो ऑनलाइन वर्कशीट हम प्रयोग कर सकते हैं, वीडियो है, गेम है, इसके माध्यम से हम इन चुनौतियों को, वो तो आनी ही है पर उसको हम थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं, है ना। तो आज का हमारा मुख्य निष्कर्ष और अगले कदम क्या होने चाहिए कि हर छात्र जो है वो हमारे लिए अद्वितीय है, अनमोल है। और जब पेरेंट्स हमारे हवाले उस बच्चे को कर रहे हैं एक विश्वास के साथ, तो उसका स्तर बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है ना। और विभेदीकरण जो है वो एक प्रभावशाली शिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बिना हमारा कार्य जो है एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में, वो अधूरा माना जाएगा कि हम इस प्रकार बच्चों को ना परख सके, और परखने के बाद भी अगर हम उनको सहायता ना दे सके तो ये थोड़ी हमारी कमजोरी दिख जाएगी। तो कोशिश करें कि हम इस प्रकार से बच्चों को सहायता प्रदान करें। अपनी कक्षा में विभेदीकरण को लागू करने के लिए उचित कदम उठाएं, थोड़ा थोड़ा। एकदम से तो नहीं हो पाएगा चमत्कार, पर थोड़ा थोड़ा कोशिश अगर हम करें तो जरूर इसमें हमें खुद अनुभव आते जाएंगे कि हाँ, ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, इसमें ये गलती हो गई, हम इस तरीके से इसको करा सकते हैं। और प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर मिलने चाहिए सीखने के। और विभेदीकरण जो है वो हम आसानी से उसको संभव बना सकते हैं अगर हम ऐसे ही एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से समझें, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को एक दूसरे से साझा करें। तो विभेदीकरण जो है कक्षा में आसान हो सकता है
और हम आसानी से हर बच्चे तक पहुंच सकते हैं, हर बच्चे में आत्मविश्वास जागृत कर सकते हैं, हर बच्चा उचित स्तर तक पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से आज की जो भी कार्यशाला थी वो मेरी तरफ से अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। अगर आपके कोई सुझाव है, प्रश्न है, उनका स्वागत है। साथियों, आपसे निवेदन, यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो कृपया प्रतीकात्मक रूप से अपना हाथ ऊपर करें। आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप स्वयं अनम्यूट कर सकेंगे और अपना प्रश्न पूछ सकेंगे, अथवा अपना प्रश्न आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैम, आपको ढेर सारी तारीफें, प्रशंसा मिल रही हैं सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। सभी को सेशन बहुत कारगर लगा, बहुत उपयोगी धन्यवाद, लगा। सभी का धन्यवाद, और आपकी सक्रिय कार्यभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे तो वो एक सेशन जो है वो जीवंत नहीं हो पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सक्रिय भागीदारी के लिए। फीडबैक और सर्टिफिकेट का लिंक चैट बॉक्स में आ गया है। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे फीडबैक अवश्य भरें, और साथ ही फिर से एक बार आपसे अनुरोध कि यदि किसी तरह का कोई प्रश्न आपके दिमाग में है जो आप पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मनीषा मैम, जी जी सर। वेरी वेरी नाइस क्लास मैम। मैम, थैंक यू सर। स्मॉल डाउट आई वुड लाइक टू आस्क यू। जी जी सर। लैंग्वेज, कुछ बच्चे पढ़ने में कुछ दिक्कत होते हैं, उनको जी। आसानी से पढ़ नहीं सकते, तो हाउ वी हम्म। कैन मेक द चाइल्ड रीडिंग कैपेबिलिटी, हाउ वी कैन इम्प्रूव द चाइल्ड? हाँ, तो रीडिंग कैपेबिलिटी के लिए हम उनको कुछ ऑडियो के माध्यम से करा सकते हैं कि बार बार वो सुने और उसका उच्चारण वैसे करे। या फिर शिक्षक के पास अगर समय है तो कुछ समय बच्चे के पास बैठे, उसको उस उच्चारण को समझाएं, बार बार रिवाइज कराएं, तो शायद उनकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। और ये निम्न स्तर से अगर हम करते हैं, छोटी कक्षाओं से अगर इसकी शुरुआत हो जाती है तो शायद बड़ी कक्षाओं में परेशानी नहीं होगी इस बात की। थैंक यू मैम। अधिकतर थैंक ये यू। परेशानी छोटे जी। कक्षे, हाँ। हम लोग केरल के लोग हैं, हिंदी जी जी। प्रदेश, जी तो जी। यहाँ के बच्चों एक से लेकर जी। तीसरी या चौथी तीसरे कक्षा थर्ड, में हाँ जी जी। सभी बच्चों को पढ़ने में या मात्रा जुटकर पढ़ने में कोई हम्म दिक्कत होते हैं, तो हम्म उसी हम्म को लेकर मैंने ये प्रश्न पूछा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मात्रागत गतिविधियां भी है, बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जा सकता है कि ऊ की मात्रा, ई की मात्रा कैसे लगाए। तो कैसे खेल खेल गतिविधि अगर हम बच्चों के साथ करें तो आसानी से बच्चे इस चीज को समझ पाते हैं। ओके ओके, थैंक यू। थैंक किसी और प्रतिभागी का यदि कोई प्रश्न हो तो उसका हार्दिक स्वागत है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मंच जो हमें प्रदान किया गया है एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन के द्वारा, बीटेक के द्वारा। तो कृपया अपनी परेशानी अवश्य यहाँ साझा करें, क्योंकि हम सभी में से कोई ना कोई हल लेकर आएगा। और आज हमारे पास मनीषा मैम है जो हमें निश्चित रूप से कक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान देंगी। Yes, ma'am. Those who have questions, they can raise their hands. We can unmute them. They can ask. Yes, sir. All participants, those who have any type of question, queries, kindly raise your virtual hand. You will be unmuted and you can ask your question. The differentiated learning is not only in Hindi classroom. It is applicable in all the subjects. So you may have the question related to your subject or your classroom. Please come forward. Okay, I think it was self-explanatory. There Yes, is sir. a One hand hand raised. has been raised. Anupam. Yes. अनुपम गुप्ता, ओके। हेलो, जय हिंद मैम। गुड इवनिंग एंड जय हिंद मैम।
जय हिंद अनुपम मैम, हिंद। प्लीज हाँ गुड। मैम, बच्चों का हिंदी के प्रति जो रुझान कम होता जा रहा है, जी उसको कैसे हम लोग, मतलब कोशिश तो रहती है कि खेल खेल में हम पढ़ाएं जी और अच्छी कोशिश भी रहती कक्षा में, लेकिन मैम उनका रुझान और अच्छा कैसे कर सकते हैं? हाँ, रुझान अच्छा करने के लिए मैम हमें थोड़ा सा अपना तरीका जो है वो बदलना पड़ेगा। हम जो पारंपरिक तरीके से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, शायद ये जनरेशन उस प्रकार का नहीं है कि हम उसी को पकड़ के चले, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा कि हम बच्चों को किस प्रकार से सिखा रहे, खेल गतिविधि ले रहे हैं, पर जहां तक संभव है कि बच्चों की भावनाओं को समझे, बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेव करें। अब रुचिकर फ्रेंडली रुचिकर बनाए, एक मित्रता का संबंध बनाए बच्चों से। अब मित्रता का संबंध की बात अगर मैं कर रही हूँ, बट एक छोटी लाइन जरूर होनी चाहिए कि एक सम्मान भी होना चाहिए मित्रता के साथ, वो क्रॉस ना करे। पर होता है कि अगर हम धीरे धीरे बच्चों तक पूरे तरीके से हम उन तक पहुंच पाए, तो वो टीचर को अगर बच्चा लाइक करने लगता है, तो बच्चा सब्जेक्ट को भी लाइक करता है। मैंने कई बार देखी है कि बच्चा अगर वो शिक्षक या शिक्षिका के प्रति बच्चे का प्रेम है, अपनत्व है, सम्मान है, जो भी है, तो बच्चा धीरे 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 उस विषय की तरफ आकृष्ट होते जाता है। अब हमारे स्कूल में देखा जाए तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में फ्रेंच, मराठी, संस्कृत और हिंदी है। तो हिंदी में ही ज्यादा बच्चे आते हैं। फ्रेंच में 2 रहेंगे या 1 रहेगा, मराठी में 4 रहेंगे, संस्कृत में 4 या 5 बच्चे रहेंगे। तो हिंदी की तरफ आकृष्ट है, जबकि बच्चों को पता है हिंदी का स्तर जो है, बोर्ड ने इन बाकी लैंग्वेज की अपेक्षा हिंदी का स्तर बढ़ा दिया है, पेपर टफ निकल, फिर भी बच्चे जो है वो आकृष्ट होते हैं। तो थोड़ी हमें जिम्मेदारी लेकर के बच्चों को इसकी तरफ आकर्षित करना चाहिए। विविध गतिविधियां, उनको भी एक फ्रीडम मिलनी चाहिए कि हाँ, इस प्रकार से हम इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। Okay, Pratibha ma'am, let's wind up. यस सर, ओके सर। तो आदरणीय मनीषा मैम का सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई मैम इस सफलतम सत्र के लिए। बहुत और बहुत धन्यवाद। हम जो समझ पाए हैं कि विभेदीकरण का अर्थ भेदभाव करना बिल्कुल नहीं होता। हमें बच्चों की अलग अलग जो यूनिक क्वालिटीज हैं उनको समझते हुए अपने शिक्षण में कुछ रुचिकर ऐसे पड़ाव डालने होंगे कि हर एक बच्चा हमारी कक्षा की ओर आकर्षित हो पाए और वो उस विषय विशेष से प्रेम करने लगे। एक बात जो मैम ने कही कि हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। शिक्षक साधारण नहीं होता। जैसा चाणक्य ने कहा है कि उत्थान और पतन उसके गोद में खेला करते हैं। तो हर शिक्षक को जिम्मेदारी लेनी होगी अपने विषय की, अपने बच्चों की, और अब वो जो पढ़ाने जा रहा है उसके सही होने की। तो आदरणीय मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सफलतम सत्र के लिए, और अनंत कोटि आपको बधाइयां। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगी आदरणीय सलाम सर का, जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया आपसे मुखातिब होने का और मुझे ये अवसर प्रदान किया आज के इस सत्र में मध्यस्थता की भूमिका निभाने का, मध्यस्थ की भूमिका निभाने का। बीजू सर, सलाम सर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सारे प्रतिभागी जिन्होंने चैट बॉक्स के माध्यम से सारी लिंक पर रिस्पॉन्सेज देकर और इस सत्र को बहुत इंटरैक्टिव रखा, उन सब का भी ढेर सारा धन्यवाद। आप सभी को शुभ संध्या पुनः, और आने वाले 2 त्योहारों गुड़ी पड़वा और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, Manisha ma'am. Manisha Bampal and Pratibha Patel. We have a very good combination today. Thank you so much. I think we have 2 Pratibha today. Manisha Bampal ma'am, आप एक प्रतिभा है. So thank you so much for this very good, useful and enriching session. As many have, said, this can be applied to all the subjects. Yes. So thank you for showing the way, the strategies and all, and it was wonderfully presented, and it was even the PPT was, the animations and all
very Very well nice. sequenced and presented very well. So thank you so much. So there are many things to learn from you. Equally important is the moderation by Pratibha ma'am. We understand that she is very busy being the vice principal. So she was not responding. Actually, we were so much, tensed whether madam could join and do it. But finally, she could do it wonderfully. Thank you so much, ma'am. Thank you, Thank you, all the sir. And I'm participants. sorry I couldn't respond so promptly. I'm very sorry, sir, for that. But definitely, I'll keep in mind next Yeah. time onwards. First time it's okay, ma'am. Next time it's not okay. Thank you. Yes, yes, sir. No, sir. I'll not repeat it. And Thank Biju you sir, so much, thank you, sir. sir. Yes, sir. Yeah, thank you, ma'am. And Biju sir, thank you, sir, for he has instigated the question at the end that gave audience also to ask doubts and also thank you all audience, all participants for your earnest and sincere participation. We do appreciate your learning. You keep on learning lot of things. We could see people, teachers, educators attending from their car. They are, traveling and they are attending. Yes. I saw one madam on the video. So very much appreciated. Thank you so much. Keep learning. Keep connected with Extra Mile Education and Training. We are doing a bit for everybody. You also can do something for the students so that it is going to be a combined effort for the benefit of the student community. Thank you so much. Stay connected. All the very best. Thank you, ma'am. We are waiting. Thank you, sir. Thank you, Manisha. Thank you. ma'am. Thank Yeah, you, Pradeep, Salam, Biju, sir, Viju, sir. Thank you. Thank you. Thank you.